40 years back in November 1984, 4,006 were killed in Delhi, the capital of India. The genocide continued unabated for 3 days. Every minute, one Sikh was killed on the streets of Delhi. After the genocide, the guilty were given high positions and they were given the position of power. For 40 years, the victims are still waiting for justice. The cases for the justice to the victims are still continuing even now. I, H.S. Fulka, a senior advocate, has been handling these cases right from November 1984 onwards. Through this video series, we have made an effort to bring to you how this massacre was planned. It's an effort to take you through the whole entire journey of this 14 years. Hi everyone and welcome to today's episode. My name is Neetika Khaitan and I am a lawyer who works on state repression, particularly mass violence against minorities. I am pursuing a PhD in history from Yale University in the United States. It is my pleasure to welcome Senior Advocate H.S. Fulka, who has represented survivors and victims of the 1984 anti-Sikh pogrom in Delhi for the last 4 decades. One of the worst and largest massacres to have occurred in independent India happened in Block 32 Trilokpuri during the anti-Sikh pogrom in Delhi. Could you tell us a bit, sir, about how this massacre happened? In Trilokpuri, these two blocks, Block 30 and 32, they were only two streets. In these two streets, according to the government figure, this is mentioned in the Nanavati Commission. In this police station, 610 Sikhs were killed. 610. And in these two streets, 406 were killed. In these two streets. And in this area, a community of the Sikhs, Lobana Sikhs, they come from Rajasthan. They do the menial jobs. They are very poor. And almost all of them were the followers of the Congress. And in every house, you would find the picture of Mrs. Gandhi because they all were the followers of Congress. What happened on 1st November morning? 31st, nothing happened in this area. On 1st morning, the mob came and they attacked. The mob was led by the local Congress councillor. They attacked this area. The Sikhs gathered at the Gurdwara. There were about 100 Sikhs. They gathered at the Gurdwara. Mob could not dare even come close to them because the Sikhs had swords and they were quite in number. Then the police came there. The police asked the Sikhs, "You go back to your houses. We are here to protect you." When the Sikhs refused to go, this is the affidavit of Ajit Singh who has stated that when the Sikhs refused to go, the police threatened that we will shoot you. The police party was led by the SHO, Surbir Singh Tyagi. The police threatened the Sikhs that we will shoot you if you do not go in. And they asked them to surrender their swords because seeing your swords, the mob is getting agitated. So they took away the swords of the Sikhs. They sent the Sikhs to their houses and after that, they indicated the mob to go and kill the Sikhs. Police remained there. They were there and the mob came led by the Congressite councillor. The worst kind of a massacre and the most brutal way in this happened. And there are so many affidavits by the survivors, by the widows, who stated the brutal and the cruel manner in which the Sikhs were killed. And one particular person, Kishori Lal,
He was a butcher. He had a meat shop. He had that butcher knife. And with that butcher knife, he killed at least 40, 50 Sikhs. That man, he was like he's slaughtering an animal. जैसे बकरा काटते हैं, the same way he was slaughtering the Sikhs. We are joined by Pappi Kaur, one of the survivors of the 84 violence. Thank you so much, ma'am, कि आपने हमें आज अपना टाइम दिया है। जी नमस्ते। जी 1984 के दौरान आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मैं 15 साल की थी। और आप कहाँ रह रही थी मैम? जमुना पार तरलोकपुरी 32 ब्लॉक में 32/53 में रहते थे हम। और 1984 में जब 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही सब हुआ, जैसे 31 तारीख को उसको गोली लगी, 1 तारीख को हमारा घर बार तबाह कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। 1 तारीख को त्रिलोकपुरी में आपने क्या क्या देखा? 1 तारीख को सुबह सुबह मारने वाली भीड़ आ गई थी। उस भीड़ ने हमारे घरों पे जैसे हमला करने की कोशिश करी, तो जो हमारी कॉलोनी के सिख भाई थे, उन्होंने उनके साथ मुकाबला करा 2-3 घंटे तक। फिर पुलिस वालों ने हमारे साथ धोखा करा। पुलिस वाले कहते कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने घरों में चले जाओ। जैसे हम अपनी कॉलोनी में वापस आए तो पुलिस वाले ने वो भीड़ हमारे पीछे पीछे भेज दी। वो जो भीड़ थी, एक एक जने को निकालती गई घर से, जिंदे को पेट्रोल डाल डाल के जलाते गए, काटते गए। वो मीट का काम करते थे, हमारी कॉलोनी में ही रहते थे। वो सुअर का मीट बेचते थे वो, तो उनके पास हथियार थे, खंजर होते हैं जो मीट काटने वाले, बड़े बड़े छुरे। उनके साथ हमारे सामने हमारे सिख भाइयों को काटा। 3 दिन 3 रातें हम यही देखते रहे, कोई बचाने वाला नहीं था, सारे मारने वाले ही थे। आपके खानदान में जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ? हमारे खानदान में मेरे घर के 10 जने गए। मेरे से बड़ा मेरा भाई था 18 साल का, उसको मार दिया। मेरे पिताजी को मार दिया। मेरे 3 चाचे, मेरा ताया, मेरा मामा, मौसा, जीजा, सारा पूरा हमारे ऐसी लाइन बनी हुई थी घरों की। मेरे दादाजी का था पहले, फिर मेरे ताए जी का, फिर मेरे चाचाओं का, हमारा ऐसे लाइन बनी हुई थी। पूरी गली हमारी खाली हो गई, पूरी लाइन की लाइन खत्म कर दी। जिंदे हमारे आंखों के सामने जलते हुए देखे हमने। सरेआम ऐसे पेट्रोल डाल रहे, 2-2 लट्ठे मार के पेट्रोल डाल रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, मत मारो मत मारो। उनकी माएं रो रही है, चिल्ला रही है, बेटा मेरा एक ही बेटा बचा है, मत मार। उसको भी मारा धक्का, पर जाके गिरी उसकी माँ, उसको जिंदे को जला दिया उसके सामने ही, आंखों के सामने जलते हुए देखे हमने। 1 तारीख को ही खत्म कर दिया था ये सब इन्होंने। 1 तारीख को ही, जैसे भीड़ थी, हजारों बंदा था, वो कॉलोनी में घुसते ही सफाया कर दिया, सारे सरदारों को मार दिया। जो बहन बेटियां थी उनको घरों से निकाल दिया, गालियां देते थे, चलो जाओ, तुम्हें दिल्ली में रहने के लिए कोई इजाजत नहीं है, तुम निकल जाओ, कॉलोनी छोड़ के चले जाओ। भाई कहाँ जाए, रात का टाइम, रात को ही जैसे घर से निकाला, ऐसे भीड़ झुंड बना के बैठ गई लेडीजें। आंखों के सामने ही सरदार हमारे भाई जल रहे, हम किसी को भी नहीं बचा पा रहे, क्या करें, हम मजबूर थे। वो रो रहे, पानी मांग रहे, हम उनको पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, और उल्टा वो उनके ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं। ये लो सालो पानी, ये लो। वो तड़प रहे हैं, ऐसे उनकी चर्बी पिघली पड़ी, हम उनके पैर, लाशों के ऊपर पैर रख रख के आए, लाशों में छुप छुप के इधर से उधर, उधर से उधर। बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले अलग, घरों का सामान लूटने वाले अलग, मारने वाले अलग। 3-3 4-4 टोलियां उनकी, किसी ने भी नहीं छोड़ा। कॉलोनी वाले भी उनके साथ शामिल थे, बाहर से भी लोग आए थे, किसी ने भी तरस नहीं खाया है कि इंसान इंसान को कैसे मार रहा है। 3 दिन 3 रातें यही होता रहा। सब हमारे को घरों से निकाल दिया, कहाँ जाएं, कभी भटक के उधर गली में जाएं, कभी उधर गली में जाएं, कभी उधर गली में जाएं, कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसे ठंड का टाइम था, नवंबर में ठंड तो हो ही जाती है,
चिल्लाते चिल्लाते एक लेडीज थी, उसको पूरा टाइम था, रास्ते में इसकी डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया उसको रास्ते में ही। फिर किसी से लेडीज से चाकू लेके उस बच्चे की नाड़ काटी। हाँ, वो मेरे सिर के ऊपर शॉल थी, उसमें बच्चा लपेट के उसकी गोदी में दिया। ऐसे ऐसे दिन देखे हमने। औरतों के साथ क्या हुआ? औरतों के साथ बहुत बुरा किया, उनकी इज्जत लूटी। एक तो गुरदीप कौर माता थी, वो मर गई अब। वो 60 साल की बुजुर्ग थी उस वक्त, अब 80-90 साल की होके मरी है वो कहती बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे कुछ मत। कि नहीं, हमारी माँ हमारे घर बैठी है, इस वक्त तो हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उसके साथ इतना गलत किया, किसी ने भी मतलब किसी के ऊपर तरस नहीं खाया, ना किसी जेंट्स पे, ना लेडीज पे, ना किसी की बहन बेटी पे। बहुत जुल्म किया है, बहुत। 1 सेकंड के अंदर सब कुछ खत्म हो गया हमारा। बेन सिंह सतवंत सिंह ने उसको गोली मारी, उनको तुरंत फांसी दे दी। जो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, हमारे घर बार लुट गए, उजड़ गए, हम रोडों पे आ गए। आपके सामने आप देख के आ रहे हो, मैं रोड पे बैठ के सब्जी बेच रही हूँ। गरीबी होने के कारण हमारी माँ ने गरीब घर में शादी करवा दी, 3-3 4 बच्चे हो गए हमारे। अब हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए, वो अनपढ़ होने के कारण नशे में पड़ गए। अब नशा करता है मेरा एक बेटा, ड्रग्स लेता है, स्मैक पीता है, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं। कुछ परेशान है बेटा, किसी को कह भी नहीं सकते। अब सुबह 8 बजे निकलती हूँ मैं घर से, रात को 11 बजे घर में घुसती हूँ। सारा दिन धूप में बैठ के मैं मेहनत करती हूँ। मेरे छोटे छोटे पोती पोते हैं, मैं कहा चलो उनको पढ़ा लिखा दूं, उनके लिए मरती हूँ मैं। बेटों में तो मैंने सुख लिया नहीं, कम से कम मेरे वो छोटे बच्चे तो हैं, उनकी तो जिंदगी ना खराब होए, उनके लिए ज्यादा पढ़ती हूँ। पढ़ लिख जाए, प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ है उनको, गुरु हरकिशन पब्लिक में पढ़ते हैं वो। बाकी हम 84 से लेके अब तक हम दुखी है, सुखी नहीं है। एक घड़ी रोते हैं, एक घड़ी खाते हैं। ना हमारे को 84 भूलेगी और ना हमारी जिंदगी बनेगी। हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। एक बारी बंदा उजड़ जाता है तो सेट नहीं हो पाता। कभी भी हम उस दिन को नहीं भूलेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं, आगे वो लड़ाई लड़ेंगे। ये भी एक इतिहास बन चुकी है, कम थोड़ी किया है हमारे साथ, बहुत जुल्म हुआ है। एक लेडीज थी, बेबी कौर नाम था उसका, अभी पिछले महीने उसकी मौत हुई है। उस लेडीज को पूरा हमारे सामने अलफ नंगा करके ले गए। 5-6 जने थे, उसको एक 2 जनों ने एक एक बाजू पकड़ी, 2 जनों ने टांगे पकड़ी, उसको ले गए। उसकी ऐसी हालत करी उन्होंने, तो वाह भगवान, दुश्मन होए ना कोई, दुश्मन के साथ भी भगवान ऐसा ना होए। हमारे गुरुद्वारे जला दिए, गुरु ग्रंथ साहब जला दिए हमारे। हम भूलेंगे नहीं इन दिनों को, जब तक जिंदे हैं, याद रखेंगे। ये 1 तारीख को ही जब आपको घर वापस भेजा गया, तब उसके बाद जो आपके खानदान में जो और लोग थे, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ यही मारपीट कर दी सबको। सारे मेरे चाचा, टीवी का कार्टून था, पहले टीवी आते थे बड़े बड़े, वो कार्टून था, उसमें छुपा हुआ था, उसको मार दिया। ऐसे चाकू मारा ना, जैसे तलवार मारी, तो चीख मारी उसने, कहते अंदर सरदार है, सरदार है। उसको हमारे सामने मार दिया। तो जो दंगाई थे वो फिर घर के अंदर आए? हाँ, घरों के अंदर घुस गए ना। उनको तो किसी का डर नहीं था, भाई यहाँ किसी का डर है तो ये कॉलोनी में अंदर ना घुसे। उनके साथ पुलिस भी शामिल थी। जो हमारी कॉलोनी के जो प्रधान लोग थे, बड़े हुए, वो एक चल भगत था कॉलोनी का हमारा, उसने ही तो उनको भेजा, जाओ भाई मार दो। और जब ये दंगाई आपके घर के अंदर घुसे, उन्होंने क्या किया? हमारे पिताजी को मारा, भाई को मारा, चाचे को मारा, समुंदर सिंह नाम था चाचे का। मार के फिर चले गए। उन्होंने उनके साथ क्या किया? वो उनके पास जो हथियार थे, उनके साथ
एक एक लाठी मारी, किसी ने चाकू मारा, किसी ने कृपान मारी, तलवार। हमारे ही हथियार थे, हमारे ही हथियार उठा के हमारे को ही मार रहे थे। घरों में घुस गए, हमारा सारा सामान उठा के ले गए। हैंडपंप था हमारा, हैंडपंप की हथी निकाल ली, हमारे ही सामान उठा के हमारे को ही मार रहे। एक वो था ज्ञान सिंह, राम सिंह, दर्शन कौर रहती है जो रघबीर नगर में, उनका और देवर था समुंदर सिंह, मेरा चाचा, उसके मकान में आके छुपा था। उसको जैसे ही चाकू मारा, एक चाकू इधर से मारा, एक इधर से मारा, उसकी आंती बाहर आ गई थी। वो ऐसे तड़प रहा, पानी पानी, और लाइट कटी हुई थी हमारी, अंधेरा था। उसी वक्त काट दी थी हमारी लाइट। हाँ, लाइटों में मार के डंडे, तारे करंट की बिछा दी दरवाजों पे, हैंडपंप की हथियार निकाल ली, और उनके पास, सबके पास टॉर्च थे, पूरी कोई गाड़ी भर के टॉर्चों की दे दी, पता नहीं क्या, सबके पास टॉर्च। ऐसे देखें नीचे से लेके ऊपर तक, ये अच्छी है, इसको ले चलो। उसी वक्त उसको ले जा रहे, औरतों के साथ टॉर्च मार मार के, अंधेरा था ना, टॉर्च मार मार के उसी वक्त ले जा रहे। मेरे आंखों के सामने 4 लड़कियों को ले गए, वो कमारी लड़कियां थी। फिर फर्श बाजार थाने में डॉक्टर आए मेडिकल करवाने के लिए। फिर किसी ने डरा दिया कि तुम्हारा मेडिकल होएगा, तुम्हारी शादी नहीं होएगी। उन्होंने फिर मेडिकल नहीं करवाया, डर के मारे, इज्जत के मारे। इतना जुल्म हुआ है। आप वहां से कैसे निकले? हम तो, मेरा छोटा वाला भाई था ना, 3 साल का, 3 महीने का था उस वक्त, मेरी मम्मी की गोदी में था। और मेरी बहन थी वो 3 साल की, मैंने उसको गोदी में उठा रखा था। तो हम बाकी के मेरे बहन भाई जो थे, हम सारे, हम जैसे हमारे को निकाला भीड़ में, हम पहले तो दूसरी गली में गए, वहां से हमारे को भगाया, फिर हम तीसरी गली में गए। 3-4 गलियां थी, जैसे गुरुद्वारे की तरफ भी गली थी, उधर भी गए हम, उधर भी मारपीट हो रही थी। फिर हम पिछली तरफ आए, उधर भी मारपीट हो रही थी। फिर 2 तारीख को हम चिल्ला गांव पहुंच गए थे। चिल्ला गांव में तो जो मेरा मामा जी था ना, हमारे सामने ही फिर उसको उधर मारा था। वहां नदी थी, हैंडल नदी बोलते थे उसको, वहां पे हमारे सामने ही। रात भी हो गई थी हमारे को वहां ही। फिर 3 तारीख को मिलिट्री जब आई थी ना, तो मिलिट्री वालों ने, जब सब कुछ खत्म हो गया, मिलिट्री वालों ने आके फिर शांत करवाया माहौल। तो शांत भी क्या करवाया, जब बहनों का भाई चला गया, माओ के बेटे चले गए, स्वप्नों के सुहाग उजड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद मिलिट्री वालों ने लिया उनको, जिनका कुछ भी नहीं बचा, कि भी तुम अपने अपने घरों में देखो, जे तुम्हारा कोई कुछ बचा हुआ होए तो तुम उठा लो। घरों में आग लगा दी, बंदे मार दिए, क्या किसका कुछ बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा हुआ था। फिर वो सरकारी बसें थी, बसों में डाल के 3 तारीख को हमारे को फर्श बाजार थाने में छोड़ा। वहां पे भूखे प्यासे भटके हुए थे। चलो सियाना बंदा तो बर्दाश्त कर लेगा, जो उनके बंदे मरे उनको रो रहे, तो उनकी तो भूख वैसे ही खत्म हो गई। बच्चे हैं जो, बच्चों के लिए कोई हमारे सिख भाई अपने घरों से खाना बना के ले आ रहे हैं, कोई बिस्किट लेके आ रहे हैं, कोई फ्रूट लेके आ रहे हैं। वहां पे काफी सारे आ गए थे, लेकिन 3 तारीख तक तो सब कुछ खत्म हो गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा। अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे हमने, बहन बेटों की इज्जत लूटते हुए देखा, घर बार लूटते हुए देखे, आदमी मरते हुए देखे, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जलते हुए देखे। कुछ भी नहीं बचा हमारा, बस एक ये इंसान, जीती जागती लाश, ये जी रही है ढीठ बन के, मजबूरी है। बाकी जो परिवार है उनको देखने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए ढीठ बन के जीना पड़ रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी जीने लायक नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। सारा दिन रोड पे बैठ के सब्जी बेच के घर का गुजारा करती हूँ। आदमी है, आदमी को शुगर है। लड़का है बड़ा वाला, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उसका पैर पूरा ऐसे मुड़ गया है, वो ऑटो चलाता है। दूसरा लड़का है, वो समेक पीने लग गया है। 10 जने एक घर में रहते हैं, बहुत परेशान है। We are joined by Bhagi Kaur, one of the survivors of the 84 violence. Thank you so much, ma'am, कि आप हमारे साथ आज आई हैं। मैं शुरुआत में यही पूछना चाहती थी कि 1984 में
आपकी उम्र क्या थी और आप कहाँ रह रहे थे? 25 साल की होंगी बस। अनपढ़ तो वैसे थे, उम्रें तो हमारी पता ही नहीं लगा। जैसे हमने नौकरी करी तो वो भी हमने उम्र वैसे तुक्के में लिखवा दी। एफिडेविट था, किसी ने हमें बताया भी नहीं। आज 12-12 साल हो गए रिटायर होके बैठे हैं, कोई हमें किसी ने बताया भी नहीं। भाई इतनी उम्र लिखाओ या क्या करो, किसी ने नहीं बताया। आप कहाँ रहती थी 1984 में? मैं जमुना पार रहती थी, त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक। और आपके खानदान में कौन कौन थे? मेरे खानदान में 7 जन की डेथ हुई है। बड़ा भाई सोहन सिंह, फिर उसके बाद इंदर सिंह, फिर उसके बाद लच्छू सिंह मेरा पति, फिर समुंदर सिंह और जगदीश सिंह भाई का नाम, गुरमुख सिंह, मनोहर सिंह। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद त्रिलोकपुरी में क्या हुआ? आमने सामने तो खूब मुकाबला किया था, दोनों पार्टियों उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। हमारे सिख थे, पथराव किया तो ये चारपाई लेके पथराव इन्होंने किया, खूब पत्थरों से, मतलब एक दूसरे को आमने सामने मारा। जब ये कहते भाई पुलिस आ गई बचाव करेगी, पुलिस ने कहा तुम अपने अपने घरों में चले जाओ। जब अपने घरों में गए, जब मारा सिखों को, नहीं तो सिख मरने वाले नहीं थे। बहुत ही हमारे अणखी थे, मरने वाले नहीं थे। उन्होंने जब घरों में गए ना, जब पर झुंड का झुंड आया, कोई आग लेके आ रहा है, कोई बंगुड़े लेके आ रहा है, कोई पेट्रोल लेके आ रहा है, कोई डंडे लेके आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से मारा। उस टाइम हमें भी थोड़ा ये नहीं था, नहीं तो हम मिर्चें मिलाते जब भी, हमारा परिवार तो बचता, कोई तो बचता। पर हमें इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं था। एक तरफ से सामान ले जा रहे हैं, एक तरफ से बंदों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ जनाने को मार रहे हैं। जनानी कहती पति को मेरे को बचा, पति कहता मेरे को बचा, कौन किसको बचाए, अपनी की लगी थी। जनानियों के बिल्कुल कपड़े उतारने, ये करने, बहुत बुरा हुआ मैडम। कहते हमें शर्म आती है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। होती है लड़ाई झगड़ा, सबके साथ होता है, पर ऐसा बेइंसाफी नहीं होती। जो एक तरफ पति मर रहा है, दूसरी तरफ पति की जनानी के ऐसे काम कर रहे हैं। वो पति क्या लेके गया हमारा, कि मेरी जनानी के साथ क्या हुआ, ये वो भी दुखी ले गया ना, गया ऊपर दुखी ले गया कि क्या हुआ। मैं इंदिरा गांधी एक मरी, अनेक सिखों का कत्लेआम हो गया। गुरु ग्रंथ साहब साड़े गए। एक मिनट रुकना है ना, मैं पानी दूं आपको? एक इंदिरा गांधी मरी, सिखों का इतना कत्लेआम हो गया। गुरु ग्रंथ साहब सार दिए, बहन बेटियों की बेइज्जती कर दी, इज्जतें लुटी। इधर से फिर वो करंटों की तारें फेंक दी। हैंडपंप थे वो, उनके वो हैंडपंप की हथियार निकाल ली, बच्चे पानी के लिए तरसे। और उसकी दर्शन कौर की जेठ की आंतरें निकाल दी, इतना बुरी तरीके से मारा। फिर मैंने जाके चुन्नी दे के बांधा उसको कि कोई बच जाए हमारा भाई, कोई नहीं बचा। इतना बुरा होया है, बहुत ज्यादा बुरा होया हमारे साथ। ये टाइम तो हम भूल भी नहीं सकते कि क्या हुआ। मैंने अपने पति को बचा के ले आई अपने, अब वहां से, और बेटे को ले आई। बेटे को मैंने फ्राक पहना दी, 2 गुत्थे कर दी, कि मेरा बेटा था 8 साल का था, अब बच जाएगा। फिर उस बच्चे को तो फ्राक बना के ले आई, वो तो बच गया, वो मेरे साथ ही था। मेरा पति बिछड़ गया, वो इनके पपियरों के साथ था, फिर उसको मार दिया। वहां से तो बचा के ले आई थी। उन्हें कैसे मारा गया? उधर मार दिया, नाले पे मार दिया उसको, पत्थर पत्थर मारे हुए थे, सबने देखा। फिर उधर मौत हो गई उसकी केले में मौत हुई बेचारे की। और उस रात आपने कहाँ गुजारा? रात फिर वहां से, रात को तो हम घर में थे, सवेरे सवेरे हम निकल गई वहां से घर से। जब ये टॉर्च मार मार के देख रहे थे जनानी भी, हम तो मट्टियां लगा रहे थे मुंह पे कि ये हमारा बचाव हो जाए। बहुत बुरा हाल था, बाल ऐसे करे मुंह पे कि इनको दिखे ना, शक्ल ना दिखे हमारी। टॉर्च मार के क्या कर रहे थे? टॉर्च मार के देख रहे थे, कोई लड़की सी मिलती, कोई जनानी सही मिलती तो उठा के ले जाते, सरियाम उठा के ले जा रहे थे। सरियाम उठा के, वो एक लेडीज थी, बेबी नाम था, मोहन सिंह की भाभी थी, वो ममता पे रही, उसको ले गए। उसको तो बहुत बुरा, ऐसी हालत बुरी करी, बहुत। वो टाइम मैडम नहीं देख पाते हम कि क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा जुल्म कैसे होया ये। फिर वहां से सवेरे सवेरे हम निकले अपने घरों से, गए चिल्ला गांव की तरफ। उधर ही भटकते फिरे मयूर विहार था, वहां पर गए।
वहां से फिर किसी ने कहा अभी यहाँ से जाओ तुम। फिर पैदल पैदल हम इधर क्या नाम इधर कल्याणपुरी थाने पैदल पैदल वहां गए। फिर शाम को उन्होंने मतलब वो अपने सिख भाई थे, उन्होंने फिर थोड़ा बहुत चाय वाय पिलाई। वहां पर जाके चाय नसीब हुई हमें। फिर वहां से रात भर रहे वहां पर 5 बजे इधर कल्याणपुरी थाने में रहे। फिर सवेरे आई गाड़ी, ट्रक भर के लाशों का आया। उनको देख के तो और ज्यादा हमारी चीखें निकल गई कि क्या हो गया ये हमारे साथ में। उसमें 2 जने बच्चे थे उस लाशों में। फिर वहां से हमें फिर गाड़ी आई, फिर हमें फर्श बाजार थाने ले गई। फर्श थाने के बाद आप कहाँ गई? फिर तो बाद में गए वो, वहां पर भी फिर उन्होंने जो लंगर वंगर देते थे वहां पर फिर बच्चों को कमरे बमरे दिए। एक कमरे में मतलब 2-2 4-4 परिवार थे, ऐसे करके रहे मतलब 4-5 महीने तो रहे वहां पर। फिर वहीं लंगर बनता था। फिर उसके बाद हम आए, उन्होंने सब ने आपस में सलाह करी कि हॉस्पिटलों में देखें कोई हमारा परिवार ना बचा हुए। जलते बलते बंदों को वहां जाके देखा, हॉस्पिटलों में 2-4 हॉस्पिटल देख आए, वहां पर भी नहीं निकले हमारे परिवार के कोई। उनको जलतों को देखते फिर रहे, कोई हमारा परिवार एक आदमी का निकल आए, कोई नहीं निकला। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपना टाइम हमें आज दिया है। We are now joined by Ms. Darshan Kaur, one of the survivors of the 84 violence and one of the main witnesses against Congress leader HKL Bhagat. थैंक यू दर्शन जी कि आपने अपना टाइम दिया है आज हमारे लिए। जी माफ़ कीजिएगा कि मैं जानती हूँ कि आपने इतने बार अपनी कहानी को दोहराया है, जी बट इस वीडियो सीरीज़ का हमारा यही कोशिश है कि जी, जो जी। कुछ भी हुआ उसकी जो याददाश्त है वो बनी रहे। जी तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना टाइम हमें दिया है। शुक्रिया। जी शुरुआत में मैं बस यही पूछना चाहती थी कि जी जो 84 में हुआ, अगर उन्हीं घटनाओं के साथ हम शुरू कर पाए। जी जी। जी तो मैम 1984 को जिस दिन 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी, जी जी, आप तब कब कहाँ रहती थी मैम? हम त्रिलोकपुरी में रहते थे, 32 ब्लॉक में। जी और उस हाँ जी। दिन ब्लॉक 32 त्रिलोकपुरी में क्या हुआ मैम? उस दिन जैसे 31 तारीख को इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, तो हमें तो पता ही नहीं था, हम तो घरों में ही थे, बैठे हुए थे अंदर। लोग बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, इंदिरा गांधी को मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया है। तो हमें कुछ भी नहीं पता था भाई क्या है। रात भी बीत गई ऐसे सही ठीक ठाक से, हम घर में ही थे, फैमिली हमारी घर में थी, खाना वाना हमने खा के सो गए थे हम। फिर जब सुबह उठे ना, ये टेम्पो और कोका कोला की बोतलें होती है, कांच की बोतलें, वो टेम्पो में भर भर के लेके आ गए। टेम्पो में भर भर के लेके आ गए। एक मस्जिद है वहां पे, तो वहां से ये बोतलें मारने लग गए। यहाँ पे ये सरदारों के घर है, ये सिखों के घर है, मारो 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 ऐसे करने लगे। तो हम निकल निकल के देखने लगे भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो जो जितने भी अंदर थे ना, जो हमारे जो घरों में थे, जितने भी सरदार जो सिख थे, वो निकल निकल के देखने लगे ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहे हैं। वो सब बाहर जैसे ही जैसे पार्क था हमारे घर के सामने, जैसे वो बाहर निकलते गए, किसी को यहाँ से लग रहा, किसी को यहाँ से, किसी को यहाँ से, किसी का सिर फूट रहा, किसी का। वो अंदर जाते गए भी हमें क्यों मार रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं, ऐसे कि ये भी ये सरदार है, इसको मारो, इसको मारो, ये सरदार है, इसको मारो, इन्होंने सालों ने इंदिरा गांधी को मारा है, इन्होंने मारा है। मतलब कितनी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे। और कैंपा कोला की बोतलें थी, दूसरी कांच की भी बोतलें होती थी, पहले पानी भर भर के रखते थे उनमें, वो भी मार रहे थे। तो ये जो जितने भी सरदार थे घायल हो रहे थे, हम पट्टियां कर रहे थे, वो कर रहे थे अंदर। हमने कहा हम हमें क्यों मार रहे हैं, हमें तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। मारते मारते सारे जितने भी थे वहां पे, जो फैमिली रहती थी, वो अपने अपने घरों में घुसते गए। तो इनको मौका मिलता गया, ये पास में आते गए, पास में आते गए, एक एक घर में सारों ने, जितने भी जो हमने भी ऐसे दरवाजा बंद कर दिया, जितने भी अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर दिए कि अंदर चले जाएं तो ये मारेंगे नहीं हमें, अगर बाहर चले जाएं, बाहर हैं तो ये लोग मार रहे हैं, हमने तो इंदिरा गांधी को मारा ही नहीं है। तो फिर ऐसे करते करते तो शाम हो गई। शाम हो गई तो मैंने अपने मतलब ऐसे हम बाहर बैठे हुए थे, निकल के सारे, फिर वो जो टेम्पो में आए थे, वो अपने टेम्पो ले लेके पता नहीं कहाँ चले गए। ये कौन थे मैम जो लोग ये आए थे? ये पता नहीं बाहर के लोग आए थे, बाहर के थे। तो हमने सोचा वो तो टेम्पो वाले चले गए, सब कुछ हो गया, अब शांत हो गया, जहाँ जहाँ देखे वहां कांच ही कांच,
शीशा ही शीशा, कितने पड़े, पैर रखने की भी जगह नहीं थी वहां पे, इतना कांच पड़ा हुआ था। तो हम फिर बाहर आके बैठ के, तो मेरे हस्बैंड थे, मेरा जेठ भी था और मेरा ससुर भी था घर में, मेरे नंदोई थे, मेरी नंद की लड़के की शादी थी भाई, 2 तारीख 5 तारीख की, पता नहीं कैसे ऐसे शादी थी उनकी। तो बम्बे से भी मेहमान आए हुए थे, वो भी डर के मारे अंदर ही छुप गए, क्या करें, किसी को क्या कहाँ छुपाए हम। हमने अंदर ही अंदर घुसे, सबको अंदर कहा भी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बच अंदर तो बच जाएंगे। तो हम दरवाजे के पास बैठ गए, उनको अंदर करके। जैसे जैसे हमने देखा ना, वहां से क्रीम कलर की गाड़ी आई और उसमें एचकेएल भगत आया। चश्मा पहना हुआ था उनको काला, और सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो आके वहां पे गाड़ी को खोल के वहां पे खड़ा हो गया सड़क पे, जैसे हमारा घर था ना उसके पास ही बिल्कुल। तो हम सारी औरतें उसके पास भागी के, हाँ सारे बोलने लगे, अरे नेता आ गया, नेता आ गया, बचाएगा, नेता आ गया। हमने भी सोचा नेता आ गया बचाएगा, तो हम उनके पास चले गए, नेताजी हाँ सर हमें बचाओ, साहब हम बचाओ, भाई साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ, ये देखो हमारे आदमियों को मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। तो उन्होंने एक आके हट हट ऐसे ऐसे मतलब कर रहे थे, हटो हटो हटो। मेरे मेरे गोदी में मेरा बेटा था 1.25 महीने का, है ना, 1.25 महीने का मेरे गोदी में था। एक मेरा बड़ा बेटा था 3 साल का होके चौथी साल में, और जो बीच वाला था मेरा जो बेटा था वो 2 साल का था। और सबसे छोटा मेरा मतलब 40 दिन का था बच्चा मेरा गोदी में। मैंने उसको ऐसे उठाया हुआ था, छोटा सा था, ऐसे पतला सा कपड़ा था, ऐसे मैंने उठाया हुआ था। तो फिर वो बोलने लगा, फिर सब सारों को बुलाने लग गया वो। फिर उसके पास जो सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, उनको बोलने लगा, जो तुम्हें चाहिए, केमिकल चाहिए, तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन वो हमारी भी माँ थी और तुम्हारी भी माँ है। इंदिरा गांधी को इन्हीं इन्हीं लोगों ने मारा है, सरदारों ने, और सरदारों का कोई बच्चा भी नहीं बचना चाहिए, उसने ऐसे कहा। और फिर उसके बाद में हमने कहा ये बचाएगा नहीं, हम तो फिर अपने घर पे आ गए। अपने आदमी को पहले ऐसे टांड हुआ करती थी सामान रखने की, मैंने उसके ऊपर चढ़ा दिया। उसके ऊपर चढ़ा दिया तो मैंने उसको अपने आदमी को बोला, मैंने कहा आप ऐसे करके लेट जाओगे तो दिखोगे नहीं, अगर बैठोगे तो फिर दिख जाओगे, ऐसे देखेंगे तो। मेरा आदमी ऊपर चला गया और चढ़ के, और फिर वो लेट गया था, और मेरा जेठ भी लेट गया था उसके ऊपर। तो मेरा मेरा आदमी थोड़ा पीछे था और वो मेरा जेठ थोड़ा सा आगे था। तो मेरे जेठ को पता नहीं कैसे इन्होंने देख लिया। पहले तो मतलब ये बाहर मारो 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 करते रहे। फिर उसकी गाड़ी चली गई तो एक सरदार भाग रहा था, उसको सिख सरदार को मैं नहीं जानती थी, तो मैं बाहर ही खड़ी थी गली में ऐसे। तो वो सरदार भाग रहा था, उसके पीछे 10-12 आदमी भाग रहे थे। हॉकी होती है ना, हॉकी जिससे वो खेलते हैं, वो लेके भाग रहे थे, और वो उसके पैर में यहाँ पे ऐसे करके उसको डाली और खींचा, वो ऐसे गिर गया। उसको उसके डंडी से मार मार के ना उसके ऊपर तेल डाल दिया और उसको ऐसे माचिस लगा दिया। फिर मैं ना ऐसे करके चीखे मारने लग गई, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने कहा ये तो जला दिया इसको जिंदे को, मैंने पहली बार वो देखा जलते हुए। उसको पूरा ही जल गया हुआ, इतना तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था, मैं क्या बताऊं आपको। जी। और तब आप घर के अंदर ही थी? वो चाहे मेरा नहीं था लेकिन था तो किसी का। जी। तो इतना तड़प रहा था, इतना तड़प, जी। वो इतने तड़पने लग गया। फिर मैं अपने घर पे आ गई, मैं अपने दरवाजे के पास ऐसे बैठने लग गई। जी। फिर एक रामपाल सरोज था वहां का, जो जो जैसे ही ये पर्सनल के जीतते हैं ना, जैसे एरिया में जीत जाते हैं। जी। फिर वो आया, कहाँ है, मेरे को बोलने लगा, भाभी जी आपका वो राम सिंह कहाँ है, राम सिंह कहाँ है, ज्ञान सिंह कहाँ है। मैं कहा भाई साहब पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं कहाँ चले गए। कहते नहीं नहीं आपने घर में छुपाए हो। मैं कहा नहीं। कहता मैं देखो मेरे ऊपर विश्वास कर लो, मैं उनको बचा लूंगा। मैंने कहा भाई साहब पूरा घर पड़ा है, आप देख लो, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ भाग गए। मेरे हस्बैंड का बोल रहा था, मेरे जेठ का। मैं क्या मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो ना अंदर चला गया फिर बहाने से, मेरे जेठ को ना ऊपर से खींच के ले आया बालों में। मेरे जेठ को खींच के उसने तलवार मारी, ने ऐसे पेट काट दिया उसका। मेरे जेठ का मेरे जेठ का पेट काट दिया, उसकी अतड़ी थी ना सारी बाहर आ गई उसकी। मैं चीखे मारने लग गई, इतनी देर में मेरी सास आ गई, सास मेरी रोने लग गई, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। वो कहाँ छोड़ने वाले थे, मेरा आदमी फिर पीछे हो गया।
उन्होंने सोचा ये एक ही है, फिर हम सारे फिर मार मूर के चले गए, कहते हैं नहीं नहीं एक ही है, बस एक ही है। मेरा आदमी पीछे की तरफ कर दिया मैंने, वो पीछे की तरफ छुपा दिया मैंने। मैम हम रुक जाते हैं कुछ मिनट। मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, फिर हमने क्या करा, मेरा जेठ को ऐसे सीधा ऐसे घसीट के ना, एक ट्रंक पड़ा था, हमने ऐसे बिठा दिया मेरे जेठ को, ऐसे लंबी टांगे कर दी, जितनी भी आंतड़ियां थी ना हमने उठा के और उसके पेट में डाली, और चुन्नी से उसका पेट ऐसे बांध दिया और ऐसे बिठा दिया, ऐसे करके बिठा दिया मेरे जेठ को। मेरे जेठ बोल रहा पानी दो, हमारे पास पानी भी नहीं था, उन्होंने टूटियां भी तोड़ दी, सब कुछ सारे तोड़ दिए। और वो बत्तियां थी ना, वो जो और पहले रॉड सी थी, वो क्या कहते हैं खंभों की, वो खंभे भी तोड़ दिए और नीचे गिरा दिए। उसमें ऐसे लग रहा जैसे हीटर जलते हैं ना, लाल लाल ऐसे हो गए, उसमें करंट इतना आ रहा, उसमें धरती में जमीन में सारे में करंट आने लग गया। करंट आने लग गया तो फिर मेरे जेठ को हमने सीधा बैठा दिया उधर ही। फिर थोड़ी देर में आए, वही रामपाल सरोज आने लग गया, फिर घुस गया हमारे घर में। फिर वो ट्रंक पड़ा था ना, ट्रंक के ऊपर चढ़ के देखने लग गया, तो मेरा आदमी दिख गया उसको, कहता इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये सरदार जी अभी ये भी छुप रहा है। फिर मेरे आदमी को ना, उस बहुत लंबे लंबे बाल थे मेरे आदमी के, फिर मेरे आदमी को ना यहाँ से पकड़ा, उन्होंने पगड़ी उतार दी, यहाँ से पकड़ के ना वहां से ऐसे खींचा तो वो नीचे गिर गया, वहां से ऊपर से गिरा दिया नीचे। तो मैं चीखे मारने लग गई, रोने लग गई मैं। फिर उसको ना घसीटते घसीटते बालों में से ही बाहर ले गए, हमारे बाहर ऐसे गली है ना, गली में ही ले गए। गली में ले जाके मेरे आदमी को और थोड़े थोड़े डंडे मारे, मेरा आदमी ऐसे ऐसे करने लग गया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करने लग गया। फिर डंडे मार के फिर एक रजाई ऊपर डाल दी, फिर उसके ऊपर एक खाट पड़ी थी मंजा, फिर वो भी डाल दिया, उसके ऊपर टायर डाल दिया जला हुआ। फिर मैं ना एक आदमी के पैर पकड़ लिए मैंने, मेरे बेटा जो 1.25 महीने का था, मेरा बेटा गोदी में था, मैंने उसके पैर ऐसे पकड़े, वो मेरे को घसीटता घसीटता बड़ी दूर ले गया, वो मेरा बेटा ऐसे गिर गया मेरे से, मेरा जो मेरे 40 दिन का था। फिर वो एक औरत ने उठा लिया मेरे बेटे को, मेरे को इतनी दूर जाके घसीट के छोड़ दिया उसने, आदमी ने लातों से ही मेरे को मारी जा रहा, लात ही लात मेरे को मारी जा रहा। मैंने कहा मेरा आदमी को छोड़ दो, आदमी को छोड़ दो। फिर मैं वहां से भाग के आई, फिर मैंने वो मंजा वैसे उठाया गिराया, और वो रजाई वजाई, और जब तक तो वो आधा जल गया था मेरा आदमी। फिर ऐसे वो मतलब क्या बताऊं मैं। फिर मेरी सास भी रोने लग गई, चलो हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो आदमी था। मेरी सास के 2 बेटे थे, दोनों मर गए। फिर मेरे ससुर को हमने किसी और के घर पे छुपा दिया, मेरा ससुर बच गया था। फिर मेरे आदमी को भी मार दिया। हमने बोला सारा कुछ तो खत्म हो गया, मेरा बेटा छोटा वाला बिछड़ गया मेरे से, मैंने समझा वो भी मर गया मेरे को। मैंने वो भी नहीं सोचा था कि वो भी मेरा जिंदा है। कुछ मिनट के लिए रुक फिर उसके बाद में ना, हम रात पड़ गई, रात होने लग गई, रात होने लग गई तो आदमी आ गए, गंदे गंदे आदमी आ गए, इतने लड़के आ गए, चिल्ला गांव था पीछे साथ में, वहां से आ गए। औरतों को कहने लगे निकलो घर से बाहर, निकलो घर से बाहर। एक मैदान सा था वहां पे ना एक औरत का घर था, वहां पे हमारे को बिठा दिया, इकट्ठा कर दिया सबको। मैं फिर रोने लग गई भैया, मैंने कहा मेरा जेठ भी मर गया, मेरा आदमी भी मर गया, मेरा बेटा भी पता नहीं कौन ले गया, मैं क्या पता नहीं कहाँ गया मेरा छोटा वाला बेटा। अरे मेरा तो छोटा वाला बेटा, जैसे पागल नहीं होते ऐसे मैं बड़बड़ाने लग गई। फिर मेरी सास बोलने लगी नीचे कर, गर्दन नीचे कर, नीचे कर। फिर ऐसे औरतों को बिठा दिया, फिर कितने सारे आदमी आ गए, लड़कियों को उठा उठा के लेके जा रहे घर में गलत काम करके, और ऐसे अंदर से निकाल रहे जैसे बच्चा पैदा होता है ना वहां के पेट में, ऐसे उनके कपड़े भी पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक रहे, अंदर ही फेंक दिए थे कपड़े, लेकिन कपड़े भी नहीं दे रहे थे। फिर मेरी सास मेरे को कहने ऐसे मारने लगी, नीचे गर्दन कर, नीचे गर्दन कर, नहीं तो तेरे को भी ले जाएंगे। मेरी नंदे भी थी, है ना, मेरी जेठानी थी बड़ी वाली, वो गाँव गई हुई थी, अपने पेके गई हुई थी अलवर, वो नहीं थी यहाँ पे। तो फिर मैं फिर ऐसे करके बैठ गई। मेरे पास दोनों बच्चे थे, एक मेरा 2 साल का था बेटा, जो एक 34 साल का था वो भी था। फिर एक बुढ़ा पकड़ने लग गया मेरे बेटे को,
फिर वो मैंने उसको बोला, बाबा मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा आदमी भी मर गया, छोटा बेटा मेरा वो भी मेरे को, वो पता नहीं कहाँ है, मैं क्या वो भी मर गया, मेरा जेठ मर गया, ये मेरे, तो वो अच्छा था बेचारा। वो उसने बोला कि इसके ना ये जूड़ी खोल दे, दोनों के बच्चों की जूड़ी खोल के ना इसके गुत्थे बना दे, लड़की बना दे, इसको लड़की बना दे। फिर मैंने ना वो जो कहता है इसकी फ्राक बना दे, मैं कहा बाबा मेरे पास तो फ्राक भी नहीं है। कहता है इसका फ्राक का ऐसे कर, ये जो ऐसे पहना हुआ ना ये उल्टा पहना दे इसको। फिर मैंने वो बुरशेट था वो उल्टा पहनाया और मैंने सारा फाड़ दिया, वो बुरशेट भी फाड़ दिया, आगे से भी पीछे से भी बटन मैंने उसके पीछे कर दिए और आगे से मैंने फाड़ दिया। फिर उसके बाद में जब लड़कियों को, औरतों को, बुड्ढी-बुड्ढी औरतों को, दादी के उम्र की औरतों को भी ऐसे-ऐसे गलत करके और बेदबी कर के छोड़ रहे, ऐसे कर के छोड़ रहे। फिर मेरी सास ना धीरे-धीरे ऐसे निकल के, और हमारे पीछे, घर के पीछे ना एक वो औरत रहती थी, आदमी, फिर उसके पास गई मेरी सास के, मेरी बेटियों को और मेरी बहुओं को बचा दे। एक मेरी बहू है, एक मेरी बहू है नहीं यहाँ पे, एक मेरी बहू है और मेरी बेटी है 2। मेरी बेटी 2 कुँवारी भी है, मेरी नंदी भी थी जवान-जवान, 2 कुँवारी थी। कहती उनकी इज़्ज़त बचा लो, नहीं तो मेरे तो सब कुछ लुट गया, मेरे दोनों बेटे मर गए। तो उन्होंने बोला अच्छा, अच्छा ये हमारा मकान बन रहा है ना, धीरे-धीरे अपनी बहुओं को, बेटियों को एक-एक करके ले आना, अगर कोई पूछे तो ऐसे कहना बाथरूम जा रहे हैं। तो वो हमारे को, मेरी सास धीरे-धीरे निकाल के ना पीछे वाले घर में हमारे को वहाँ पे छुपा दिया। और वो घर बन रहा था। वो घर बन रहा था, अंदर इतना पानी था, गीला, 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 गीला। उसके अंदर हम ऐसे करके ना, ऐसे करके पूरी रात बैठे रहे। और उसने ना बाहर से ताला लगा दिया, औरत ने। बाहर से ताला लगा दिया, फिर जैसे बच्चे रोए और ये करें ना, हम गए वहाँ पे, हम 5-6 जनी थे। फिर हमारे को देख के 10-12 लेडीज़ और भी आ गई और इतनी सी जगह में हम ऐसे करके बैठे हुए। फिर उस औरत ने ताला लगा दिया, सुबह 6 बजे खोल दिया उसने। और ये औरत भी वो सिख औरत थी? हैं? ये औरत भी सिख थी? नहीं, सिख नहीं थी, हिंदू थी। और उसने हिंदू ने उसने औरत ने हमारा बहुत साथ दिया फिर। और ये जो सारी घटनाएँ आपने अभी दोहराई हैं, ये सब 1 तारीख की ही हैं? हाँ, 1 तारीख की है। 1 तारीख की रात को जो, है ना? तो फिर हम ना, फिर पीछे वाले दरवाजे, फिर उसने ना, हम पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे अंदर। गली से बाहर जा रहे थे, मारो, 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 इस औरत को उठाओ, इस औरत को उठाओ। ऐसे-ऐसे मतलब बातें कर रहे थे और ऐसे-ऐसे बोल रहे थे। तो हम अंदर बैठे, बच्चे रोए हमारे, ऐसे-ऐसे करे, ऐसे-ऐसे। सुबह सारा दिन हो गया, पानी नहीं पिया, रोटी नहीं खाई, कुछ नहीं किया। बच्चे पानी-पानी कर रहे हैं, हम उसका मुँह ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके बैठे हुए पूरी रात। सुबह 6 बजे उसने, औरत ने ताला खोल दिया कि भई रात को तो मैंने अब छुपा दिया, अब मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, अब मैं नहीं छुपा सकती, नहीं तो मुझे भी वो कहेंगे कि आपने इनका साथ दिया है, तो मुझे भी साथ में ये करेंगे। 2 तारीख की बात है ये। तो 2 तारीख की बात है, तो हम ऐसे घूम के आए, देखा तो वहाँ पे कोई आदमी, जेंट्स नहीं था। जैसे हम ऐसे घूम के आए ना हमारी गली में, जैसे हमारे घर के पास, हमारे घर घर पे तो आग लगाई हुई थी, सारा जला दिया था, वो सामान-वामान लूट के ले गए थे और अंदर आग लगी पड़ी थी। और सामने जब हम गली में आए ना, तौबा, 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 जब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी लाशें पड़ी हुई, इतनी लाशें। पूरी रात मारते रहे। और लाशें भी क्या, आधी जैसे फूल जाती है ना, ऐसे, कोई ऐसे पड़ा होगा, कोई ऐसे, कोई सीधा, कोई ऐसे पड़ा होगा, कोई ऐसे। हम तो ऐसे ऐसे कांपने लग गए और जोर जोर से चीखें मारने लग गए कि ये हमारे को पता ही नहीं था कौन सा मेरा आदमी है, कौन सा मेरा क्या है। मतलब सारे एक जैसे ही हो गए थे, मतलब दिख भी नहीं रहे थे इसमें, कौन सा मेरा आदमी है, कौन सा मेरा भाई है, क्या मेरा बेटा है या क्या है। मतलब सबको इन्होंने ना आधा जला दिया था, आधा छोड़ दिया था। मतलब ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने। फूल गई लाशें, भी फूल गई वो। लाशें फूल फूल गई। फिर हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे, भी कोई बर्तन-वर्तन मिल जाए तो बच्चों को पानी-वानी तो पिलाएँ। देखें तो कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था हमारा। सारे कपड़े लूट के ले गए थे, घर में आग लगा दी थी उन्होंने। और बर्तन-वर्तन भी नहीं थे, सारे ले गए थे। फिर मेरी सास को बोला, मैं क्या, मैं रात नहीं रहूँगी अब यहाँ पे। मैं क्या, रात को देखा ना आपने कितना बुरा करा, मैं क्या, अब एक भी रात रह गई यहाँ पे, एक भी घड़ी रह गई ना, मैं क्या, अब दोपहर में भी, दिन में भी, मैं क्या, फिर औरतों को पकड़ के ले जाएँगे। मैं क्या, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। मैं क्या, मेरा छोटा बेटा भी बिछड़ गया है। मैंने दोनों बच्चों को पकड़ा, मेरे जो नंदोई को भी मार दिया, दूसरे नंदोई को भी मार दिया, जिसकी शादी होने वाली थी 5 तारीख को, उस लड़के को भी मार दिया, उसके पापा को भी मार दिया। और जो बम्बई से आए हुए थे उनको भी मार दिया, 10-12 जनों को उनको भी मार दिया, जो शादी में आए हुए थे बम्बई से। पहले औरतें कम जाती थी ना, आदमी चले जाते थे शादी में,
अब तो ये औरतें जाने लग गई हैं, तो उनको भी मार दिया उन्होंने, जिंदा जला दिया। जी, आपके खानदान में कितने लोगों को मारा था? हमारे खानदान में जैसे मेरे नंदोई वगैरह 12 बंदों को मार दिया था। हमारा कोई जेंट्स बच्चा ही नहीं था, ये बच्चे ही थे छोटे-छोटे बस जो हमारे पास थे। फिर वहां से हम चल दिए, पैदल 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 हम आए इधर पड़पड़गंज। पड़पड़गंज में हम चौंकी वो एक तो हम ऐसे आने लग गए, तो एक वो क्या कहते चाय बना रहा था। हमने बोला भैया हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ी थोड़ी चाय दे दो, हमारे आदमी मार दिए और भैया देख लो हम हमारे सारा खत्म कर दिया। हम त्रिलोकपुरी से आए, पैदल पैदल चलते चलते काफी टाइम हो गया हमारे को, चला भी नहीं जा रहा था हमारे से। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर उन्होंने हमारे बच्चों को एक एक वो कांच का गिलास था, उसमें एक एक चाय दे दी और एक एक फैन दे दिया। मैंने दोनों बच्चों को आधा आधा तोड़ के दे दिया और आधी आधी चाय पिला दी। ऐसे ही हम 10-12 लेडीज थी, तो उस हमने ऐसे उसने चाय पिला दी। मैं कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं है। वो कह रहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम चाय पी ली, अब तुम जाओ, इधर पास में चौकी है, चौकी में चले जाओ, चौकी वाला तुम्हें बचाएगा। तो हम पड़पड़गंज पुल है, पुल के पास हम चौकी में चले गए। हमें पहले तो आने नहीं दे रहे थे। फिर हमने बोला भाई हमारे आदमी मार दिए, अब हमें तो बचा लो। हम तो कल से हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, हमने भी कुछ नहीं खाया, तो हमें तो कुछ तो पानी वानी तो पिला दो, हमारे बच्चों को तो पिला दो पानी। हमारे बच्चे भी वो एक मेरा बेटा मैं क्या पता नहीं कहाँ है, बिछड़ गया, पता नहीं मर गया छोटा वाला। और मेरे आदमी को भी मारा, हमारे कितने बंदे मार दिए। तो वो फिर चौकी इंचार्ज निकल के आया। वो कहता अच्छा अच्छा आ जाओ सारे आ जाओ। फिर हम अंदर जाने लगे ना, वो मिट्टी का वो था पहले कच्चा, अब तो फर्श होने लगे ना, कच्चा वाला वो लीपा हुआ था फर्श। फिर हमें ना वहां पे वो ऐसे वो बिछा दिया कुछ, हम उसके ऊपर बैठ गए। ये पुलिस चौकी थी। हाँ पुलिस चौकी में। फिर उन हमने बोला हमने कुछ नहीं खाया, हम हाथ वाथ जोड़ने लग गए। कहता देखो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पीछे से ऑर्डर नहीं है, ना मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं ना कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, ऐसे बोलने लग गया वो। फिर सामने एक तंदूर था, उसको बोलने लगा, कहते भी आप सब्जी रोटी बना दो इनको। फिर उन्होंने ना आलू का झोल बनाया, आलू उबाल के बनाते ना, वो बनाए और तंदूर की रोटी लगाई। फिर हमने एक एक रोटी खाई, बच्चों ने भी खाई रोटी। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। फिर एक दो रोटी मैंने रख ली। मैंने कहा, वो कहता मैं अब शाम हो गई है, अब तुम जाओ, मैं चौकी में नहीं रख सकता तुम्हें। फिर हम सामने गए, पांडु नगर में एक गुरुद्वारा था, पांडु नगर में। त्रिलोकपुरी से पैदल पैदल पांडु नगर गुरुद्वारे में आ गए। गुरुद्वारे में आ गए तो वहां पे हमने जाके बोला भाई हमारे को, वो कहते गुरुद्वारा नीचे थे, तो नीचे से तो इन्होंने सारा जला दिया है, आप यहाँ पे आप रात गुजारना चाहते हो तो गुजार लो, लेकिन फिर आएंगे दंगे ही मारने वाले, और ये फिर मत कहना हमें कि हमें बचाया नहीं है। हमने कहा हमें रात दे दो, तुम यहाँ पे काटने के लिए, हम कहाँ जाएं, ये 2 तरीक की बात है। फिर उन्होंने बोला आप ऊपर चले जाओ। वो गुरुद्वारा बन रहा था, पानी वानी पड़ा हुआ था, उसमें रेता वेता सीमेंट विमेंट, हमने कट्टे उठाए सीमेंट के। शाम हो गई, रात हो गई। जो हम वहां से रोटी लेके आए थे वो थोड़ी थोड़ी बच्चों को खिला के कट्टे बिछाए हमने वहां पे बच्चों को सुला दिया। हमने सुला दिया, सर्दी का तो टाइम था सर, वहां पे बच्चों को सुला दिया। और फिर हम वहां पे बैठ गए तो वहां पे एक पुल है, वहां पांडु नगर में एक पुल है। पुल से पुल से दंगई फिर आ गए, मारो मारो मारो। हम फिर ईंटें पड़ी थी, हमने सारी ईंटें उठा उठा के इकट्ठी करने लग गए। हम वहां पे 50-60 लेडीज थे। हमने ईंटें उठा के इकट्ठी करके रखी हुई है। जैसे दंगई आ रहे थे ना, हम ऊपर से ईंटें बरसा रहे, ईंटें मार रहे उनको, ईंटें ही रात को, पूरी रात नहीं सोए हम। वो जैसे ही आए ना, मारो मारो मारो, हम ऊपर से ईंटें डाल रहे थे, वो भी जख्मी होके भाग रहे थे। पूरी रात हम ऐसे लड़ाई करते रहे। वो फिर चले जाए, फिर नीचे से ईंटें उठा के फिर ऊपर ले आए, फिर वहां पे इकट्ठी करें, फिर वो आए, फिर उनको मारें, फिर वो चले जाएं, फिर भी ईंटें उठा के ऊपर ले आए। फिर ऐसे ही पूरी रात हो गई। फिर गुरुद्वारे वालों ने हमको बोला कि भाई आज 3 तारीख हो गई है और अब हम रात नहीं रख सकते आपको। रात को तो आपने देख लिया और आपने मुकाबला भी कर लिया, और रात को भी अब हम आपको गुरुद्वारे में नहीं रख सकते। हमने बोला हम कहाँ जाएं? कहते यहाँ पे पीछे ना गुरुद्वारा है दमदमा साहब, अब वहां चले जाओ। फिर वहां से पांडु नगर से हम पैदल 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 पूरे जमुना में, जमुना से जा ही जा रहे। इतना ट्रैफिक, जब इतना ट्रैफिक नहीं होता था, और कुछ भी गाड़ियां भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रही थी। और पुलिस वाले जो है ना, वो टेम्पो में
इतनी लाशें भर भर के उसमें फेंकी जा रहे उसमें जमुना जी में। जब हम वहां पे खड़े होने लगे ना, किसी की गर्दन नजर आ रही हमारे को, किसी की ये बाजू नजर आ रही, किसी की टांग नजर आ रही, किसी का धड़ नजर आ रहा, हम चीखे मार मार के उस मिलिट्री वालों के पास जा रहे, ये मेरा भाई है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा वो है, मेरा ये है। मतलब हम वहां पे हम रोने लगे तो पुलिस वाले कहने लगे जाओ जाओ आप, ये तुम्हारे नहीं है, हम बहुत दूर से लेके आए हैं। और पता नहीं वो त्रिलोकपुरी से लेके और वो जमुना जी में फेंक रहे थे पानी में। इतनी लाशें, पता नहीं कितनी गाड़ियां खड़ी थी, उसी में फेंकते जा रहे थे लाशें। फिर हमारे को वहां से भगा दिया उन्होंने। फिर हम पैदल 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 पैदल, वहां पे एक रेल की पटली आती है, बस रेल की पटली हम पार होने वाले थे, जैसे गुरुद्वारा हमको नजर आ गया, तो हम सोचा भाई गुरुद्वारा नजर आ गया, चलो हम अब तो हम इधर इधर रह लेंगे। कहाँ देखो त्रिलोकपुरी, और कहाँ से हम पैदल पैदल दमदमा साहब। बस हम पटड़ी पार होने लग गए और वहां पे हमारे को पुलिस वालों ने फिर पकड़ लिया, मिलिट्री वालों ने, कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। हमने कहा त्रिलोकपुरी से आए, हमारे ऐसे ऐसे करके आदमी मार दिए और औरतों की इज्जत लूट रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम इसलिए भाग के आए हैं, भाई हम गुरुद्वारे में रह लेंगे। कहते त्रिलोकपुरी का ये इलाका कल्याणपुरी थाना है, तुम कल्याणपुरी थाने में जाओ। हमने कहा फिर इतनी दूर जाएं? वो कह रहे जहां मर्जी जाओ, हम तुम्हें नहीं बचा सकते। हमें गुरुद्वारे में रेल की पटली भी नहीं पार करने दी हमारे को वो, और हमें वहां पे भेजा ही नहीं। हम फिर वापस गए, फिर वापस पैदल 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 पैदल, हमको फिर ना पानी ना कुछ, पैर में मेरे कांच लग गया, जहां मैं पैर रखूं इतना खून ही खून, खून ही खून। बैठते जा रहे वो करते जा, शरीर में जान ही नहीं कि हम 2 कदम चल जाए। बैठ बैठ के रोते हम, बिजलाते, इतने रोते जा रहे, चलते जा रहे, इतने चीखे मारते जा रहे, हम क्या करें। हमारे पास को और कुछ कोई था ही नहीं कि हम किसके पास जाएं। फिर हम पैदल 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 ही पैदल पुल ही पुल 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 पार करके ही हम फिर फर्श बाजार में थाने, देखो सुबह के निकले हम, शाम को पहुंचे वहां पे। और ये 4 तारीख की बात है। हम पहुंचे थे 3 तारीख को, 3 तारीख को पहुंचे। थाने में पहुंचे तो वहां जाके देखा तो अंग्रेज बैठे हुए थे वहां पे। अंग्रेज बैठे हुए थे, बिस्किट दे रहे थे, पानी दे रहे थे। हम अंग्रेजों को चिपट चिपट के रोने लग गए। हम इतना, मतलब वो होता, अंग्रेज भी हमारे साथ, वो लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। पुलिस वाले ऐसे देखने लग गए हमारे को, अरे हमारे तो सारे मर गए, सारे मर गए, क्या करें हम, क्या करें, हमारे घर लुट गए, वो है ये है, ऐसे ऐसे बोल के। फिर वहां पे हमारे को चुप करा के वहां पे बिठा दिया। हम बैठ गए, फिर बिस्किट दिए हमारे को, फिर पानी वानी दिया, अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, अपने खुद भी पानी पिया। क्या करें, ये पेट जो पापी है तो कुछ तो मांगता था ना पानी। जब अब आदमी मर गए तो कहाँ ढूंढे हम आदमियों को, जा जाके उनका तो नाम निशान उन्होंने मिटा दिया था। फिर तो हमें लाशें ही नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला हमें। पहले तो देख भी लिया ना भाई हमारे सामने मर गए हैं, फिर तो लाशें भी नहीं मिली हमारे को। फिर हम वहां बैठे 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 फिर उन्होंने गाड़ी मंगवा ली। फिर उसके बाद में हमारे को वहां औरतों को फिर फर्श बाजार थाने में ले गए। फर्श बाजार थाने में ले जाके वहां पार्क में बिठा दिया हमें। रात पड़ गई, इतनी ठंड हो रही थी, ना हमारे पास कपड़े ना क्या। फिर एक वो हमने बोला भाई हमारे को कमरा दे दो, जब कुछ है वो करेंगे, कमरा नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहीं बैठे रहो। पुलिस वाले बोलने लगे यहीं बैठे रहो, कुछ भी नहीं देंगे तुम्हें, कुछ यहाँ पे बैठे रहो, यहाँ पे तुम आए क्यों, ऐसे बोलने लगे। हम मर्जी से थोड़ा आए, हमें तो वो पुलिस वाले छोड़ के गए ट्रकों में डाल डाल के। फिर एक आए वो संत से, पता नहीं अगोत्री, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, ऐसे बोले, वो आए। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी ये लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जितने भी बच गए, जेंट्स तो थे ही नहीं, लेडीज ही थी सारे। कहते ये वाले आप खोल दो इनको क्वार्टर, और एक एक कमरे में ये 4-4 फैमिली रहेंगी। इतना इतना ही बस कमरा था, बस एक इतना इतना कमरा था। जैसे मेरी नंद, मैं थी, और मेरी सास थी, दूसरी नंद थी, हम 4 फैमिली। तो हमारे पास नीचे बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर उन्होंने खोल के दे दिया हमें कमरा। वो कहते पहले तो खोल नहीं रहे थे, कहते ये स्टाफ क्वार्टर है, पुलिस वालों के स्टाफ क्वार्टर है, हम नहीं खोल के देंगे। फिर उन्होंने फिर खुलवाए कि जब तक आप खोलोगे नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो फिर रात को खोल दिए उन्होंने, खोल दिए तो फिर वहां पे मेरा बेटा मिल गया रात को फिर मेरे को वहां बेटा मिल गया। फिर मैं उसको गले लगा के इतना रोई, बहुत रोई।
कुछ मिनट के लिए रुके। देखो बेटा, जिसके साथ बीतती है ना उसी को पता चलता है। जी, बिल्कुल। हमारे घरों के घरों इन्होंने उजाड़ दिए, हमने किसी का वो बिगाड़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं बिगाड़ा था हमने। जी।